class I discussed the different traits and characters of the society. When the space changes, the character of the society also changes. Like in different social groups, I gave you that in society there is a different marriage system, different family system, and different art, different folks, different dances, different occupation, different settlement, different architecture, different language, and different races and different religion. Or there are so many other characteristics are there. Like in India, within India, when we classify the society, with space, all these characteristics get changes. Every society has different marriage system. Every difference at different space, you will find different dances. Like in India, you know, some different classical dances. Manipuri, Kuchipudi, Kathakali, Mohiniyattam, Kathak. They are the different classical dances. And the folk dances, you know, Gidda is there, Baul is there, Tamasha is there. Where Tamasha takes place? Maharashtra. And Gidda? And Baul? Bengal. And Bhils are having different dance. Santhal tribal groups have different dance. Where is Bihu? Bihu, Assam. And where is Lavani? Okay, where is Gangor? Rajasthan. So in different regions, we have the different dances, different folks. And गाने का तरीका अलग बदल जाता है, डांस अलग हो जाते हैं, architecture also gets changed. In different region, basically we are responding to the nature in terms of the architecture. Before the you can say Arabs in India, our building construction was almost thatched and temporary houses we were constructing. But when the Arab people came to India, they brought a different architectural system, like dome, जिसको मेहराब बोलते हैं, gates, wall, palace, mosque. These are the first architectural system it was introduced. So we developed accordingly. In different region, in Rajasthan, we make wide walls. चौड़ी दीवार बनाते हैं घरों की. Just to all are working as a thermostat between in the temperature, because it is the area very hot desert area. But when we move towards east, in Assam, in Bihar and Bengal, thickness of the wall get reduced to minimum, because they don't have the problem of the temperature. Temperature uniformity is there. So everywhere these social characters of the society changes with space. While discussing all these, let's come over to one important point, that is races. Races. Before discussing the races, I wanted to give you a basic overview of the origin of man, how man evolved and converted into different races. And with the theory of evolution, we cannot say that evolution have taken place from one area or one region.
it looks origin have taken place in Africa, human origin have taken place in Australia, human origin have also taken place in India, human origin also have taken place in Europe and different part of the world, in China. So we don't have evidence that there was the only one place from where human man originated and diffused all over the globe. So on the basis of that, I think I explained earlier, let me revise it, repeat it once again as a human origin. Origin means evolution. Human evolution, we can say, it starts with, sorry मैं यहाँ से explain करूँ. Human evolution meant there was the life, basically mammals. Which life form came first on the earth? Fish. And after that, amphibians. And after that, reptiles. Some disappeared, some remained, and some sustained, and then mammals. And from mammals, it was known as anthropoid. Anthropoid. Man separated here, and this is known as Australopithecus. Then it disappeared, but anthropoid keep going on. Then there was another branch. This is known as Homo habilis. And this also disappeared over the time, and later then Homo erectus. And it also disappeared over the time, and present Homo sapiens are the one, those are surviving. And simultaneously when Australopithecus separated, we have some Pongidies. Pongidae also separated. So they are known as chimpanzee. 99.4% DNA of chimpanzee and man are similar. So they are very close to man, but they separated. This is the time period, you can say Oligocene. You can say it is approximately 40 million years ago. 40 million year BP, before present. They separated. And Australopithecus, almost 26 million BP, million year BP, separated. Homo habilis, 18 million BP, before present. Homo erectus, 7 million BP, million year BP, and 1 lakh year. This is last. So what are the other Pongidies? Can you name? Chimpanzee, 99% DNA are same. So when Australopithecus separated from an anthropoid in evolution, जब उद्भव हुआ इंसान का, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस 4 पैर से 2 पैर पे चलने लगा, इसका जबड़ा बहुत बड़ा होता था, फ्लैट नोज होता था, ऐसे होता था, जबड़ा बाहर निकला हुआ होता था. उसी टाइम पोंगिडाई के 4 अलग हुए, चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटेन और गिब्बन्स.
ये 4 टोनिक ये आज भी हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आया। ओवर द टाइम दे कुड नॉट चेंज एंड दे आर रनिंग पैरेलल टू होमो सेपियन। बिना किसी बदलाव के होमो सेपियन बनने के लिए कितने एंथ्रोपॉइड में कितने बदलाव आए। कभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देखिए सीसी होती है क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी होती है क्रेनियल कैपेसिटी। ये जो खोपड़ी है द सिर, इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसके कितने क्यूबिक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूबिक इसकी कैपेसिटी कितनी। तो इस टाइम ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक बंदर जैसा इंसान था, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी केवल 800 सीसी थी, 800 सीसी, इसको 800 सीसी कहते। लेकिन होमो हिबेलिस बना तो उसकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1100 हो गई, 1100 सीसी। और जैसे ही होमो इरेक्टस बना उसकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1250 सीसी हो गई। होमो सेपियन की आज लगभग 1400 सीसी। आज के इंसान की एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी 1350 से 1450 के बीच में वेरी करती है, इसको 1400 बोलते हैं। तो जो एक इंसान था, इतने बड़े बड़े जबड़े थे, कार्निवोर था, कैनाइन थे, पूरी बॉडी पे हेयर्स थे, झुक के चलता था, कभी दोनों पैरों पे, चारों पैरों पे कई बार खड़ा होके चलता था। ग्रेजुअली ओवर द टाइम इट डेवलप्ड ए pituitary gland and brain shifted from back to the top on the head and it became man started walking straight. So इन सारी फेज में बेसिकली द प्रेजेंट डे मैन, इसके कई बताते हैं, कई इवोल्यूशन है। लाइक एक कहते हैं सिनांथ्रोपस, एक होमो सेपियन जो आज का इंसान है इसको सिनांथ्रोपस, सिनांथ्रोपस का मतलब है ये चाइना में इसको पेकिंग मैन बोलते हैं, पेकिंग मैन, चाइना में इसका उद्भव हुआ। कुछ इवोल्यूशन में बोलते हैं एक सिनांथ्रोपस, वहां से इंसान का उद्भव हुआ और बाकी सारे दुनिया में फैला। फिर एक कहते हैं रामापिथेकस, रामापिथेकस ये इंडिया में इंसान पैदा हुआ और सारी दुनिया में फैल गया। एक सोलोमैन अफ्रीका में पैदा हुआ और सारी दुनिया में फैल गया। एक जावा मैन, साउथ ईस्ट एशिया में इंसान का उद्भव हुआ और बाकी दुनिया में फैला। तो ये कई थ्योरी है, लेकिन इसके बाद जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय थ्योरी है वो है निएंडरथल में। निएंडरथल ये बेसिकली जर्मनी में निएंडरथल एक रिवर है और उसके पास जो निएंडरथल हैड टेल और निएंडरथल झुक के चलता था, लगभग 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे झुक के चलता था और वो आज के इंसान से 1 फीट एवरेज हाइट में ज़्यादा था। पूरी बॉडी पे उसके हेयर्स थे, बाल थे और उसका जबड़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन पूरा शरीर और पूंछ भी थी। लेकिन आज के इंसान से बहुत क्लोजली मैच करता है। लेकिन उसके बाद फिर एक लास्ट होमो सेपियन जिसको मानते हैं कि ट्रू होमो सेपियन है, उसका नाम है क्रो मैग्नन। ये फ्रांस में बेसिकली गुफाओं में इनके कंकाल मिले हैं, इनकी गुफाओं की पेंटिंग भी मिली है आज से 5000 साल पहले। बेसिकली 5 से 10,000 साल पहले तक जो पेंटिंग है वो क्रो-मैग्नन की पेंटिंग है। सो बेसिकली क्रो-मैग्नन बने सिनांथ्रोपस से, रामापिथेकस से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ये कंकाल मिला है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं कि वहाँ से फिर, लेकिन ये डिसअपीयर हो गया था। आज का इंसान से ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैच नहीं करता, बट ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस आज के इंसान के बहुत करीब था। यानी कि ये एंथ्रोपॉइड से होमिनोइड, इनको होमिनोइड बोलते हैं सबको। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंथ्रोपॉइड से जो
ब्रांच अलग हुई उसको बोलते हैं होमिनोइड। तो ये जो जितने होमिनोइड हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इवेलिस, ये सारे होमिनोइड हैं, इंसान है। ये दो पैर पे चलने वालों को हम होमिनोइड बोलते हैं बेसिकली। सो इस तरह से इंसान का उदय और आज का इंसान क्रो-मैग्नन। इससे ये लगता है कि एक जगह तो अलग अलग फॉसिल्स मिले हैं, लेकिन इसका मतलब अलग अलग स्थान पे मानव की उत्पत्ति हुई है और पिछले 1 लाख साल के बाद हुई है, और ये लास्ट आइस एज के बाद हुई है। लास्ट आइस एज जो प्लेस्टोसीन का है, देखिए अर्थ पे बहुत सारे आइस एजेस रहे हैं। आइस एजेस तो आपको पता ही है क्यों आए थे आइस एजेस। ये अर्थ पे, पूरी अर्थ पे यहां तक आइस फैल गई थी। अब तो आइस सिर्फ पोल पे ही है ना, यहां तक आ गई थी। यहाँ इतने एरिया में आइस और इतने में सिर्फ पानी बच गया था, आज तो यहाँ तक पानी है। बेसिकली अर्थ पे एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो कंपोजिशन है वो चेंज होती रहती है। कई बार एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर, ऐसी गैसेस आती हैं कि उनको बाहर से ही वो गैसेस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। अर्थ की टेम्परेचर क्या होगा ऐसी पोजीशन में, कम हो जाएगा टेम्परेचर, तो आइस बढ़ जाएगी। और फिर कई बार ऐसा होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ की आई और बाहर नहीं जाने, जैसे आजकल हो रहा है, यानी कि हीट आती है और बाहर वापस उतनी नहीं जाती। बैलेंस होना चाहिए ना, तो जितनी हीट वापस नहीं जाएगी तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से 4 बार आइस एज आई, फिर ये पीछे हट गई, फिर आई, फिर पीछे हट गई, फिर आई, फिर। तो लास्ट 4 आइस एजेस थी, आइस एजेस। हिमयुग, 4 हिमयुग रहे हैं, वुंज, मिंडल, रिस, और जो लास्ट आज चल रहा है ना उसको वुर्म, विड्रॉल ऑफ आइस चल रहा है ना धीरे धीरे, इसको हम वुर्म आइस एज कहते हैं। ये 4th आइस एज जो आज चल रहा है, ये धीरे धीरे पीछे हट रही है ना आइस, दिस इज कॉल्ड वुर्म आइस एज। और इंसान की उत्पत्ति इस वुर्म के साथ ही हुई है। जब वुर्म पीछे हटा तो इस बीच में जब आइस एज यहां तक थी, तब भी मान लिया यहाँ इंसान ईस्ट यूरोप में था और आइस आगे बढ़नी शुरू हुई, तो इस इंसान ने क्या किया, इसके पास 3 ऑप्शन थे। आइस एज आगे आ रही है, आइस आगे आ रही है, या तो ये इंसान इक्वेटर के पास आ जाए, या ये इंसान इसी कंडीशन में एक्लेमेटाइज कर जाए, और दिस ह्यूमन group migrate in search of the suitable climate. So this man adopted all 3 options. जो कोल्ड में एडजस्ट कर गए, कोल्ड में, they are known as mongoloid. Mongoloid basically जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में एडजस्ट कर गए, like Chinese people, Siberian people living in Siberia, living in polar region, Eskimo, Lapps, Inuit, Samoyed, मैं सबके नाम आपको बताऊंगा। या तो ये तो कोल्ड में, देन एक ऐसे थे जो इक्वेटर पे वार्म एरिया में आ गए, माइग्रेट करके परमानेंट वार्म में इक्वेटर के पास, इनको हम नेग्रिटो बोलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक तीसरे भी है जो एक सूटेबल क्लाइमेट की तलाश में माइग्रेट कर गए, टेम्परेरी सूटेबल क्लाइमेट, और बेसिकली ये माइग्रेट कर गए। दे आर नोन एज कॉकेसॉइड। कॉकेसस, बिकॉज जब आइस एज आया तो ये कॉकेसस माउंटेन्स को पार करके साउथ में आ गए। लेट मी एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ कॉकेसस माउंटेन हियर।
This is Mediterranean Sea, this is Caspian Sea, and this is the East Europe, and this is mountain range. This is Caspian Sea, and इसके ईस्ट में this is called Siberia. This is called steppe grassland, very cold, and this entire area is known as because सारी दुनिया में सब एरियाज के जो नाम दिए हैं ना ग्रीक्स ने दिए. इंडिया, इंडीज गिवन बाय ग्रीक्स, अफ्रीका, यूरोप, द टर्मिनोलॉजी बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया रीजन बोलते हैं. कई बार आप सुनेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ से आ गया. सो बैक्टीरिया रीजन इज सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोल्ड स्टेपी ग्रासलैंड इज नोन एज बैक्टीरियन रीजन. अब ये मेडिटेरेनियन है और मेडिटेरेनियन के ईस्ट में ये रेड सी है और ये अफ्रीका है, ये अरब है. सो यहाँ अगर आइस एज आएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इधर मेडिटेरेनियन है, इधर कैस्पियन है, इधर ऑलरेडी ठंडा है, तो ये लोग इसको पार कर जाएंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेन रेंज? कॉकेसस माउंटेन. कॉकेसस. और कॉकेसस को पार करके कहाँ आएंगे? ये मेडिटेरेनियन के किनारे पे. सो इस ये बेसिकली इनको अरब्स कहेंगे. फिर वापस आइस एज वापस आ गई तो फिर ये वापस चले गए. लेकिन कुछ फिर आइस एज आई तो कुछ वापस नीचे आ गए, और कुछ रेशियल ग्रुप जो नीचे आए वो वापस नहीं गए. अरब से आगे आ गए, इनको पर्शियन कहेंगे. और कुछ पर्शियन से भी आगे निकल गए, उनको इंडियन कहेंगे. और ये वापस नहीं गए कभी भी. बेसिकली आइस एज आई और यहाँ तक आ गए, और फिर आइस एज से ये कई बार कॉकेसस के इधर और इधर माइग्रेट करते रहे. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कॉकेसॉइड. सो बेसिकली तीन बड़ी रेशियल ग्रुप्स का आइस एज के बाद इवोल्यूशन हुआ. पहले तो इंसान का इवोल्यूशन, इंसान में भी फिर तीन तरह के अलग अलग इंसान. रेस बेसिकली एक सोमेटिक फीचर है, एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक फिजियोलॉजिकल टेक्सोनॉमी है, जो एक हर उसकी ग्रुप की अलग अलग है. इस अलग अलग टेक्सोनॉमी में, अलग अलग फिजियोलॉजी में, अलग अलग सोमेटिक फीचर्स में हम सारे इंसान के बायोलॉजिकल फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं. क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, कोल्ड क्लाइमेट हो जाए तो हमारा रंग येलो हो जाएगा, हॉट क्लाइमेट हो जाए तो हमारा रंग ब्लैक हो जाएगा, कोल्ड मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा तो हमारा रंग वाइट रहेगा, हम वार्मर में रहेंगे तो व्हीटिश हो जाएगा. सो द with the climate the human features, somatic features, physiological taxonomy changes with climatic conditions, and that is called race. Race में भी there are further subgroups, sub-racial groups, which we used to say ethnic groups. Race within race, a racial group within a broader race. Like in India, India में भी दो हैं. जो पहले आए फर्स्ट आइस एज में आ गए और वापस नहीं गए या बस गए, और फिर जो दूसरी आइस एज में आए और जो आए थे उनको उन्होंने नीचे वापस साउथ की तरफ धकेल दिया. जो पहले आए थे दे आर नोन एज द्राविडियन, और जो बाद में आए दे आर नोन एज आर्यंस. सो बेसिकली वी हैव द टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, द्राविडियन एंड आर्यंस. सो बेसिकली दीज आर फर्दर सब ग्रुप्स, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. नाउ कम ओवर टू बेसिकली the classification, on what basis we classify the races. So today I will take this only, the classification of races. Basis of classification of races.
रेसेस को किस आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं? डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, एथनोग्राफर्स, geographers classified the races basically like Haydn, Risley. Some more names are there, but these are the two important names. Haydn, Risley. Okay, but one Griffith Taylor, G. Taylor. He wrote a geography of 20th century, a book, and he gave his classification. He also gave migration zone theory, how European people out-migrated in different latitudes according to the climatic conditions. Because Europeans, English preferred to live in either in New Zealand or in southeastern part of Australia, because that follow the similar climate to the यूरोप. जैसे यूरोप में क्लाइमेट था वैसी ही जगह जाके चले गए और वो वहाँ रहने लगे. लाइक साउथ अफ्रीका, लाइक they never settled down in the warmer area. So he gave the migration zone theory. But Griffith Taylor applied the first criteria, that is called cephalic index. Cephalic index means width of the head divided by length of the head. Multiplied by 100. So on the basis of this, we will obtain three types of head or different types of head. We will obtain the index, say from 68 to 82. ये रेंज मिलेगी पूरी दुनिया में. कहीं भी किसी भी इंसान का सिर का ये इंडेक्स निकालें तो आइदर 68 और 82 इसके बीच में मिले. So this is the range we will obtain, and on the basis of this range he classified the three types of racial group. One is called dolichocephalic. Dolichocephalic means long-headed. सही मायनों में लंबा नहीं होता, but in comparison to the width, it is comparatively long head. If I construct three types of head, देखिए मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया. तीन सिर हैं from the top. These are the three different heads. आपको इंडियन का हेड इनमें कौन सा ज्यादा सूटेबल लगता है? फर्स्ट वाला. So in comparison to the, देखिए लंबा नहीं है, इनसे कम चौड़ाई है, कम लंबाई है, लेकिन मैंने इसको लॉन्ग हेडेड लिखा है बिकॉज इसकी विड्थ है ना कम है और विड्थ के कंपैरिजन में इसकी लेंथ रेशियो ज्यादा है, तो इससे दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉन्ग हेडेड. फिर दूसरा होता है मेसोसेफालिक. मेसोसेफालिक इज मीडियम हेडेड.